Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 2 और यूनिट 2 का बच्चे चैप्टर है समबडीज मदर। देखो अ टेल ऑफ व्हीलर यूनिट 2 का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है बच्चे, इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो आ चुके हैं। तो अगर आपको टेल ऑफ व्हीलर में किसी को डाउट है तो आप उस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर है समबडीज मदर। इसका लास्ट वीडियो में बच्चे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया गया है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो बच्चे आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे हम समबडीज मदर की एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली जाए बच्चे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लें, जिससे कि जब भी हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो हमें चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा और इसकी एक्सरसाइज हम फटफट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले बच्चे देख लेंगे हम इस चैप्टर का शॉर्ट सा समराइजेशन। The woman was old and ragged and grey। एक बार पहले पूरी पढ़ेंगे, है ना। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng of human being who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Down the street, with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boy like a flock of sheep, hailing the snow-piled white and deep. Past the woman, so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheel or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. Next day. Her aged hand on his strong young arm she placed, and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She's somebody's mother, boy, you know, for all she is aged and poor and slow. I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and prayer she shed, was God be kind to the noble boy who is somebody's son and the pride and joy। ठीक है, ये है हमारी पोयम। चलो फटाफट इसको एक बार वंस इसका शॉर्ट सा समराइजेशन देखेंगे। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day। जो वुमेन थी बहुत बूढ़ी थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके बाल सफ़ेद थे। एंड बेंट, वो झुकी हुई थी, विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसके साथ वो थोड़ा सा झुक के चल रही थी। ठीक है, द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजिड एंड स्लो। जो सड़क थी वो गीली थी, जहाँ पे वो खड़ी थी, जहाँ पे वो चल रही थी, अभी हाल हुई स्नो से।
हाल में स्नो पड़ रही है तो उसकी वजह से जो सड़क है वो गीली हो रही है, और जो उन लेडी के पैर हैं वो बहुत थोड़े से, वो भी मतलब बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत धीमे धीमे स्लो चल रही हैं. She stood at the crossing and waited long, alone and cared for amid the throng. वो क्रॉसिंग पे खड़ी हुई हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, अकेली. उनकी हेल्प करने मतलब उनका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है. उस भीड़ के बीच में, वो अकेली खड़ी हुई हैं एक जगह क्रॉसिंग पर, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं. Of human being who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. जो लोग जन उनके पास से भी गुजर रहे हैं वो भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे, एक नज़र भी उनकी चिंता भरी आंखों में भी. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. उसी गली से स्कूल की छुट्टी होने की खुशी में एक हंसी ठहाके की आवाज़ें आ रही हैं. Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. वहीं से मतलब लड़के आ रहे हैं, like a flock of sheep, भेड़ों के झुंड जैसे, hailing the snow piled white and deep, उस सफ़ेद और उस ज़्यादा जो गहरी स्नो है उसके साथ खेलते हुए. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. उस वुमेन के पास से निकल रहे हैं जो कि बूढ़ी और ग्रे हैं, और मतलब जल्दबाजी में निकल रहे हैं उसी रास्ते से जहाँ पे वो खड़ी हैं, वहीं से जल्दबाजी में वो लड़के निकल रहे हैं. Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. और कोई उनको हाथ भी नहीं आगे बढ़ा रहा उनकी हेल्प करने के लिए. वो बेचारी डरी घबराई हुई सहमी सी खड़ी है कि कहीं वो गिर ना जाए. फ्राइड टू स्टेयर, उनको डर है कि वो कहीं गिर ना जाए. लेस्ट द कैरेज व्हील और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट. उनको डर है कहीं गाड़ी के पहिए से या हॉर्स के फीट से कहीं वो इस भीड़ से कहीं गिर ना जाए इस फिसलन भरी गली में. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. Finally, उस खुशहाल ग्रुप से एक जन आया जो कि बड़ा खुश सा दिखाई दे रहा था अपने ग्रुप से. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. वो खड़ा हुआ, मतलब वो रुका और मतलब उनके पास आके रुका और बड़ा धीरे से बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो. फिर इसके बाद है, her raised hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. उनके जो हाथ थे, उनके बूढ़े हाथ को उसने अपने आर्म में पकड़ा और बिना उनको कोई तकलीफ दिए, बिना उनको कोई दर्द या नुकसान पहुँचे, उसने उनके बूढ़े हाथों को पकड़ा. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. वो उनके बूढ़े पैरों को साथ साथ गाइड कर रहा था और वो अपने को प्राउड भी कर रहा था कि वो इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग है और फर्म है. Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. वो वापस आया अपने फ्रेंड्स के पास जो कि जा रहे थे और उसका भी जो दिल था उस लड़के का बड़ा खुश था और वेल कंटेंट, एक सेटिस्फेक्शन था उसको कि उसने उनकी हेल्प करी. शी इज somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. वो भी किसी की मदर हैं बॉयज़, तुम जानते हो, बस वो बूढ़ी हो चुकी हैं, थोड़ी गरीब हैं और बस धीरे चल रही थी. I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी तरह कोई और इंसान भी मेरी माँ के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा जब उनको हेल्प की ज़रूरत होगी. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. बस वो थोड़ी गरीब हैं, बूढ़ी हैं और उनका जब मतलब उनका खुद का बेटा उनसे दूर है. And somebody's mother bowed lowered her head
एंड हर नाइट दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सैड, और वो जो किसी की मदर थी उन्होंने उसी रात अपने घर जाके अपना सर भगवान के आगे झुकाया और प्रेयर करी और कहा, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु समबडीज सन प्राइड एंड जॉय। भगवान उस अच्छे बच्चे का भला करे जो कि किसी का बेटा है, किसी का घमंड है और किसी की खुशी है। ठीक है जी बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एक शॉर्ट सा समराइजेशन। अब आई होप आपको ये पूरा पोएम फ्रेशन अप हो गया होगा। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले बच्चे वी हैव अ लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इवेंट्स ऑफ द पोएम इन अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए जी, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती गई हैं उनको आपको रीअरेंज करके लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये सारे सेंटेंस आपको अरेंज नहीं दिए हुए, इन सबको रीअरेंज करके लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारे स्टेटमेंट्स को, सारे इन लाइंस को पढ़ लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि कौन सा पहले आएगा, आफ्टर देन क्या आएगा, आफ्टर देन क्या आएगा। जैसे फर्स्ट है द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। जो लड़का था अपने फ्रेंड के पास वापस लौट आया और वो इस चीज़ पे प्राउड फील कर रहा था जो उसने काम किया था। क्या काम किया था? उसने उन जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड जो मदर थी, उनकी हेल्प करी थी, है ना। तो ये देखेंगे ये कहाँ आएगा, आफ्टर देन है द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव। जो ओल्ड वुमन थी क्रॉसिंग पे खड़ी हुई थी और मतलब अकेले खड़ी हुई थी और हेजिटेट कर रही थी, मतलब हिलने में थोड़ा भी हिचकिचा रही थी, आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थी। क्यों? स्लिपरी स्ट्रीट थी, थोड़ा वेट वेट सा, मतलब जो गली वली थी वो सारी गीली हो रखी थी स्नो की वजह से, तो वो नहीं चाहते थे कि वो थोड़ा भी आगे जाएं और उनका पैर स्लिप हो जाए या वो गिर जाए, उनको कुछ भी हार्म हो जाए। ठीक है ना, तो सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले से पहले ही आना है, इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय पास्ड बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। जो स्कूल बॉय का ग्रुप था उन ओल्ड लेडी के पास से गुजरा हंसता खेलता हुआ, है ना। तो ये वाला जो लाइन है ये फर्स्ट वाले के भी पहले आएगा, है ना। आफ्टर देन क्या हुआ, द बॉय ऑफर टू द हेल्प द ओल्ड वुमेन क्रॉस द स्ट्रीट। एक लड़के ने, स्कूल बॉय का जो ग्रुप था उनमें से किसी एक लड़के ने उनको हेल्प के लिए ऑफर किया था, ओल्ड वुमेन को हेल्प ऑफर करी थी, है ना। उस गली को क्रॉस करने के लिए, उस स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए एक लड़के ने, उस ग्रुप के ने हेल्प का ऑफर दिया था उनको। ठीक, आफ्टर देन फिफ्थ है द वुमेन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। जब वो वुमेन भी याद है नहीं आपको, जब वो ओल्ड लेडी थी वो घर आ गई थी अपने, तो उस रात उन्होंने उस लड़के के लिए प्रेयर की थी जिसने उनकी हेल्प करी थी। तो ये वो लाइन है। सिक्स्थ वाली है द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमेन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। जो चिल्ड्रन थे ओल्ड वुमेन के पास से वो जल्दी जल्दी से जा रहे थे, निकल रहे थे, लेकिन उनको हेल्प ऑफर नहीं कर रहे थे। सारे जो स्टूडेंट थे, सारे जो बच्चे थे ओल्ड लेडी के पास से जा तो रहे थे, लेकिन कोई उनको हेल्प के लिए नहीं पूछ रहा था कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो, आपको कोई हेल्प चाहिए या नहीं। उनमें से एक लड़का आके बस हेल्प किया था, है ना। सेवंथ है द वुमेन placed her hand on the boy's arm and he guided her safely across the street। ये जो ओल्ड वुमेन थी उन्होंने अपने हाथ को लड़के की आर्म पे रखा और वो जो लड़का था वो उनको सेफली गाइड करता रहा सड़क को क्रॉस करवाने के लिए। ठीक है। एट्थ है द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे।
जो लड़का था वो सोच रहा था अपनी खुद की माँ के बारे में और आशा भी कर रहा था कि कल को अगर उसकी माँ को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आके उनकी हेल्प करेगा, है ना। जिसने किसी और की माँ की हेल्प करी थी वो जस्ट थॉट कर रहा था कि जब उसकी माँ को कभी ज़रूरत लगे तो होप सो कि उसकी माँ की ऐसे ही कोई हेल्प कर दे। ठीक है, ये सारे बच्चे अच्छे से समझ आ गए। अब करेंगे इनको रीअरेंज कि सबसे पहले क्या इंसिडेंट था, आफ्टर देन क्या हुआ, आफ्टर देन क्या हुआ। देखो, तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ कौन सी स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं, सेकंड वाली जिसमें है द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव। जो ओल्ड वुमेन थी क्रॉसिंग पे अकेले खड़े हुई थी और वो मूव करने में जरा भी हेजिटेट हो रही थी, हिचक रही थी कि कहीं वो आगे थोड़ा और बढ़े और कहीं गिरा ना जाए, लाइक ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड वाली लाइन आएगी। आफ्टर देन बच्चे थर्ड वाली आएगी। तभी क्या हो रहा था, वहाँ से स्कूल बॉय पास आउट हो रहे थे उनके पास से, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय पास्ड बाय प्लेइंग एंड laughing. A group of schoolboy passed by playing and laughing. ठीक है, उनके पास से स्कूल बॉय का ग्रुप निकल रहा था हंसते खेलते हुए। आफ्टर देन बच्चे सिक्स्थ वाली लाइन आ जाएगी। द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमेन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। जो बच्चे उनके पास से निकल रहे थे, मतलब वो बड़ा जल्दी जल्दी में निकल रहे थे और उनको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, उनको उनमें से कोई भी बच्चा हेल्प नहीं कर रहा था, है ना। हमें पता है बस एक लड़के ने हेल्प करी थी। तो सिक्स्थ वाली लाइन आ जाएगी इसमें, द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमेन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। ठीक है, फिर फोर्थ में बच्चे फोर्थ वाली लाइन ही आएगी। द बॉय ऑफर्ड टू द हेल्प, द बॉय ऑफर्ड टू द हेल्प द ओल्ड वुमेन क्रॉस द स्ट्रीट। उन लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का आया था उनकी हेल्प करने के लिए उस स्ट्रीट को क्रॉस करने में। सो द बॉय ऑफर टू हेल्प द ओल्ड वुमेन क्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, आफ्टर देन बच्चे सेवंथ वाली लाइन आएगी। सेवंथ वाली लाइन क्या है, the woman placed her hand on the boy's arm and he guided her safely across the street. अब जिस लड़की ने हेल्प करने के लिए ऑफर किया, उन वुमेन ने क्या किया, अपना हाथ उस बॉय की आर्म पे रख दिया। ठीक है, और वो जो लड़का था उनको सेफली गाइड करता रहा उस स्ट्रीट को क्रॉस करने में। सो द वुमेन प्लेस्ड हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म and he guided her safely across the street. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, इसके बाद फर्स्ट वाली लाइन आ जाएगी। द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। जब उस लड़के ने उनको रोड क्रॉस करवा दिया, वो फिर अपनी फ्रेंड्स के पास वापस लौट आया। अब वो क्या, उसने जो काम किया उसके लिए बड़ा प्राउड फील कर रहा है ना। सो द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। ठीक है, द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। नेक्स्ट बच्चे एट्थ वाली लाइन आ जाएगी। द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। आफ्टर देन एट्थ वाली लाइन है, द बॉय थॉट, अब लड़का सोच रहा है कि अपनी खुद की माँ के बारे में भी सोच रहा है और आशा कर रहा है कि कल को अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कोई और उनको हेल्प कर दे, है ना। सो द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वाली लाइन आ जाएगी लास्ट। The woman prayed for the boy who helped her. The woman prayed for the boy who helped her. सबसे लास्ट में क्या हुआ था कि वो जो वुमन थी उन्होंने घर आके उस लड़के के लिए प्रेयर करी, है ना, जिस लड़के ने उनकी हेल्प करी थी। ठीक है, क्या प्रेयर करी थी,
भगवान उसको खुश रखे, भगवान उसके साथ अच्छा करे, ठीक है। तो उसको अच्छी सी ब्लेसिंग करी थी, उसके लिए अच्छा अच्छा बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको रीअरेंज करेंगे। वंस इनको एक बार आप सीक्वेंसली रीड कर लें तो देखो पहली लाइन में आएगा द वुमेन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव। आफ्टर देन नेक्स्ट लाइन रहेगी हमारी अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय पास्ड बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। आफ्टर देन आएगी बच्चे द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमेन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। आफ्टर देन आएगी बच्चे द बॉय ऑफर्ड टू हेल्प द ओल्ड वुमेन क्रॉस द स्ट्रीट। आफ्टर देन बच्चे नेक्स्ट लाइन रहेगी हमारी द वुमेन प्लेस्ड हर हैंड ऑन बॉडी अ बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। आफ्टर देन आएगी बच्चे द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ वॉट ही हैड डन। आफ्टर देन रहेगी बच्चे द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। नेक्स्ट एंड लास्ट रहेगी द वुमेन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसमें लेटर्स डिस्कस के अंदर अभी एक सेकंड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कितने हैं लेटर्स डिस्कस के अंदर? काफ़ी सारे हैं, 6 क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Filling the blanks by choosing the correct answer from the option given in the bracket. Filling the blanks by choosing the correct answer from the option given in the bracket. अब देखो हमें क्या करना है, इसमें 5 पार्ट्स दिए हैं, फिलअप है और फिलअप के अंदर ब्रैकेट दिए हुए हैं। उन ब्रैकेट में से कुछ ना कुछ एक ऑप्शन को चूज करना है। कोई 2 ऑप्शन है, उनमें से अपने करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम। पोयम का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? पोयम का थीम क्या है? काइंडनेस एंड एम्पैथी या फिर एडवेंचर एंड करेज? थोड़ा दयालुता और थोड़ा सिंपैथी टाइप, या फिर कोई एडवेंचर, कुछ मतलब एडवेंचर, कुछ नया करने, नया चीज़, और कोई करेज, कोई साहस। बताइए, यहाँ तो काइंडनेस दिख रही है ना। सो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज काइंडनेस एंड एम्पैथी। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज काइंडनेस एंड एम्पैथी। ठीक है। सेकंड है द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन क्या है? ह्यूमरस एंड प्लेफुल, मतलब थोड़ा हंसी मजाक वाला, थोड़ा खेलने कूदने वाला टाइप, या फिर सिंपैथिक एंड होपफुल। सिंपैथिक, किसी के लिए सिंपैथी देना, और होपफुल मतलब आशा करना, कुछ आशा भरा, है ना। देखो सिंपैथी दिखाई उस लड़के ने, और अपनी खुद की माँ के लिए आशा भी कर रहा था कि भगवान उनको भी कल को अगर ज़रूरत लगे तो कोई हेल्प कर दे, है ना। तो द टोन ऑफ द पोएम इज sympathetic and hopeful. The tone of the poem is sympathetic and hopeful. Third one है the poem is written in couplet with line in each stanza. देखो कपलेट होता है मतलब वो सेम राइमिंग वर्ड टाइप, मतलब सेम पेयर वाली लाइन आ रही है ना, तो सेम ऑलमोस्ट 2 लाइन का पेयर चल रहा था, है ना। हम पूरा पोएम पढ़ के आए, 2 पूरी लाइन का पेयर चल रहा था। तो जो कपलेट्स आ रहा था, मतलब जो पेयर आ रहा था हर एक स्टेंजा में, वो 2 का था या 4 का, 4 का था या 2 का था, 2 का पेयर आ रहा था नहीं। तो द पोएम इज रिटन इन कपलेट विथ 2 लाइन इन ईच स्टेंजा। द पोएम इज रिटन इन कपलेट विथ 2 लाइन्स इन each stanza. Fourth one है the structure of the poem give a rhythmic flow that reflect both the structure of the poem gives a rhythmic flow that reflect both the
जो पोयम का स्ट्रक्चर है वो एक रिदमिक फ्लो दे रहा है ना, एक पोयम जैसा, एक रिदम जैसा फ्लो दे रहा है, जो कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, नरेटिव एंड इमोशन या फिर स्टोरी का पेस एंड मैसेज, नरेटिव एंड इमोशन या फिर स्टोरी पेस एंड मैसेज। क्या ये कोई स्टोरी का पेस या कोई मैसेज दे रहा है क्या, ये जो रिदमेटिक फ्लो है, या फिर एक नरेटिव सेट कर रहा है और एक इमोशन के साथ है ये पूरा पोयम। हाँ जी, इसमें इमोशन तो जुड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे हम अपना आंसर चूज करेंगे नरेटिव एंड इमोशन। So, the structure of the poem gives a rhythmic flow that reflects both the narrative and emotions. ठीक है, the structure of the poem gives a rhythmic flow that reflects both the narrative and emotions. Fifth one है, the poem follow a rhyme scheme of AABB या फिर ABAB, नहीं AABB, मतलब सेम सीक्वेंस टाइप चल रहा था। तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या थी, AABB, है ना, सेम सही तो चल रहा था नहीं, तो AABB जो 4 लाइन हो रही थी उसमें 2 स्टार्टिंग के सेम पेयर थे, फिर नीचे 2 सेम पेयर थे, है ना। तो द पोएम फॉलो अ राइमिंग स्कीम ऑफ AABB। ठीक है, चलो अगर समझ आ गया तो इनको वंस एक बार रीड करेंगे। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज काइंडनेस एंड एम्पैथी। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज काइंडनेस एंड एम्पैथी। सेकंड है, द टोन ऑफ द पोएम इज sympathetic and hopeful. Sympathetic and hopeful. Next है, the poem is written in couplets with lines in each stanza, 2 lines in each stanza. So the poem is written in couplets with 2 lines in each stanza. Fourth है, the structure of the poem give a rhythmic flow that reflects both the narrative and emotion. ठीक है। फिफ्थ है, द पोएम फॉलोज अ राइमिंग स्कीम ऑफ AABB। पोएम फॉलो अ राइमिंग स्कीम ऑफ AABB। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर है तो मूव करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, पिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस। पिक एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम फॉर द पोएटिक डिवाइस। देखिए बच्चे, हमें अपनी पोएम से कुछ ना एग्जाम्पल पिक करने हैं जो कि हमारी इस पोएटिक डिवाइस को फॉलो कर सके। लाइक स्माइल देखो, स्माइल का क्या रहेगा जी, देखो इसके लिए हम अपना कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी पोएम से। केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, है ना। स्माइल लाइक इसमें क्या आ जाएगा, स्माइल नहीं है, सिमिली इसमें बच्ची क्या आ जाएगा, केम द बॉय लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो यहाँ कंपेयर बॉयज टू द फ्लॉक ऑफ शीप यूजिंग लाइक, है ना। हियर केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, जिसमें बॉयज को कंपेयर किया गया है शीप के फ्लॉक से, लाइक को यूज करते हुए, है ना। एलिटरेशन, एक एलिटरेशन का एग्जाम्पल जो हमें पोएम से मिल सके। ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे, ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे, यहाँ पे जी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन, यहाँ पे जी साउंड रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, सो ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे रिपीट्स द जी साउंड। नेक्स्ट है रिपीटेशन, रिपीटेशन के लिए कुछ भी, somebody's mother मतलब है वुमेन का इम्पोर्टेंस को रिपीट किया गया है। सो रिपीट टू एम्फेसाइज द वुमेन्स इम्पोर्टेंस, रिपीटेड टू एम्फेसाइज द वुमेन्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, वंस इनको रीड करेंगे।
First we have a simile. Came the boy like a flock of sheep. जहाँ पे compare boys to a flock of sheep using like. ठीक है. Second है alliteration. Alliteration के अंदर है old and ragged and grey. Old and ragged and grey. Here repeats the G sound. Repeats the G sound. थर्ड वन है रिपीटेशन. तो रिपीटेशन में somebody's mother, जो कि repeated to emphasize a woman's importance. Somebody's mother here repeated to emphasize the woman's importance. ठीक है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे? अगर चलो ये बढ़िया से क्लियर है तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में है complete the following sentences appropriately explaining the imaginary imagery sorry explain the imagery. So complete the following sentences appropriately explain the imagery. देखो हमें यहाँ पे appropriate सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ओवरऑल. जैसे फर्स्ट है हमारे पास द पोएम यूज इमेजरी टू डिस्क्राइब सीन ऑफ बस्लिंग स्ट्रीट. वी नो दिस बाय द फ्रेज. देखो हमें कहाँ पे मतलब कहाँ पे इमेजरी यूज हुआ है कि वहाँ पे सीन्स डिस्क्राइब हो रहे हो बस्लिंग स्ट्रीट के, बिजी स्ट्रीट के, है ना. बस्लिंग स्ट्रीट, बस्लिंग मतलब होता है बिजी. तो कहाँ किस लाइन से पता चल रहा है कि जो हमारी स्ट्रीट है वो बस्टलिंग है, बिजी है? कोई एक लाइन है क्या हमारी इस पोएम में ऐसी? बताइए. देखो बिल्कुल है. द क्राउडेड स्ट्रीट. क्राउडेड स्ट्रीट यहाँ से पता चल रहा है क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाली गली. अगर भीड़ भाड़ है तो वो बिजी स्ट्रीट है, बस्लिंग स्ट्रीट है ना, थोड़ी सी नॉइजी स्ट्रीट है. तो the crowded street which help us imagine a busy and noisy place full of people. है ना भैया, अगर भीड़ भाड़ है तो वहाँ आवाज़ें भी होंगी, वो जो प्लेस है वो बिजी प्लेस भी होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ पीपल हैं. सो द क्राउडेड स्ट्रीट विच हेल्प अस इमेजिन अ बिजी एंड नॉइजी प्लेस फुल ऑफ पीपल. द क्राउडेड स्ट्रीट which help us imagine a busy and noisy place full of people. करेक्ट है. सेकंड है the line the street was wet with the recent snow. ये जो लाइन है कि जो सड़कें गीली हो रखी थी किससे? जो हाल में जो वो स्नो पड़ रही है उससे. Suggest a cold and dash weather emphasizing the woman helplessness. तो कोल्ड एंड क्या कैसा वेदर था, जो कि मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है क्या सजेस्ट कर रही है कि जो वहाँ का वेदर था वो कैसा था, जो कि वुमेन को बड़ा हेल्पलेस कर रहा था. बताइए कैसा वेदर था? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वेदर था वुमेन के लिए, है ना, क्योंकि दैट वुमेन वाज ओल्ड, है ना, ओल्ड थी, वीक थी, वो तब चलने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी, हेजिटेट फील कर रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए. सो यहाँ पे बच्चे कैसा वेदर था? कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल वेदर एम्फिसाइजिंग द वुमेन्स हेल्पलेसनेस. ठीक है. द लाइन द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो suggest a cold and uncomfortable weather emphasizing the woman helplessness. करेक्ट. दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए. चलो अगर कंप्लीट हो गए तो हैंड टू हैंड रीड करते जाएंगे वंस इनको एक बार. द पोएम यूज The poem used imagery to describe scenes of bustling street. We know this by the phrase क्या था? The crowded street, which help us imagine a busy and noisy place full of people. Second है, यहाँ पे है the line the street was wet with the recent snow,
suggest a cold and dash weather, emphasizing the woman's helplessness. यहाँ पर आएगा जी uncomfortable, है ना, uncomfortable weather emphasizing the woman's helplessness. ठीक है, बढ़िया से ठीक. चलो अगर ठीक है तो मूव करेंगे अपने फिफ्थ वन पे. फिफ्थ पार्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल रीजन. हमें यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है कोई भी एक सही रीजन के साथ. ठीक है, सेंटेंस है हमारा द पोएम रिपीट्स द फ्रेज somebody is mother because. ये जो पोइट है वो बार बार इस लाइन को रिपीट कर रहा है, इस फ्रेज को रिपीट कर रहा है somebody is mother. क्यों कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा, वो किसी की माँ थी, ये इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा होगा. ये हमें बार बार याद दिला रहा है कि जो ओल्ड वुमेन होती हैं उनको भी प्यार और केयर की ज़रूरत होती है ना, वो भी काइंडनेस और रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं जैसे कि हमारी मदर या किसी और की मदर, है ना. सो बच्चे यहाँ हम क्या रीज़न मेंशन करेंगे. रिमाइंड्स अस दैट ओल्ड वुमेन इज ऑल्सो अ लव्ड एंड केयर्ड फॉर पर्सन डिजर्विंग काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट जस्ट लाइक एनीवन एल्स मदर, है ना. तो the poet repeat the phrase somebody's mother because it reminds us that old woman is also a loved and cared for person deserving kindness and respect just like anyone else mother. क्लियर है, बढ़िया से. चलो अगर क्लियर है सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे. देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी. एनालॉजी को कंप्लीट करना है. जैसे ओल्ड वुमेन के साथ है बच्चे वल्नरेबल एंड नेग्लेक्टेड. ओल्ड वुमेन को वल्नरेबल किया गया था और नेग्लेक्ट किया गया था, है ना, उनको सब लोग इग्नोर करके जा रहे थे. वहीं जो यंग मैन था यहाँ पे क्वालिटी बताई है ओल्ड वुमेन के लिए, है ना. ओल्ड वुमेन नेग्लेक्ट करी जा रही थी, वल्नरेबल करी जा रही थी. सेम एज जो यंग बॉय था, यंग बॉय एक काइंड था, कंपैशनेट था, है ना. यंग बॉय काइंड एंड कंपैशनेट. सो ओल्ड वुमेन वल्नरेबल एंड नेग्लेक्ट एंड यंग बॉय काइंड एंड कंपैशनेट. ठीक है, बढ़िया से. चलो अगर ये ठीक है तो मूव करेंगे बच्चे. इसके बाद है हमारे पास लेटेस्ट थिंग्स एंड रिफ्लेक्ट. जरा सोचो और फिर बताओ. ऐसा फर्स्ट है जिसके अंदर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें एक एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और इसके बिहाफ पे फिर बच्चे जो क्वेश्चन आएंगे उनके हमें यहाँ पे क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इस एक्सट्रैक्ट है द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे. द वुमन वॉज ओल्ड and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. देखो इसका मतलब था, वैसे हम मतलब पोएम में बता कर आए हैं बट एनीवे एक बार देख लेंगे. इस एक्सट्रैक्ट का मतलब है, फर्स्ट टू लाइन का मतलब है कि जो लेडी थी, वुमेन थी, वो ओल्ड थी, उनके मतलब कपड़े जो थे वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे और वो बहुत बूढ़ी हो रही थी. ठीक है, और वो ठंड की वजह से थोड़ा सा झुक के चल रही थी. द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट्स वर एजेड एंड स्लो. और जो स्ट्रीट था वो जिस गली में थी, जिस स्ट्रीट में थी, वो गीली हो रखी थी क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी. इसी वजह से जो वुमेन्स के जो फीट थे, देखो, और वो जो वुमेन्स के फीट थे वो एजिड थे, बुढ़ापे की वजह से वो एजिड थे, है ना. एंड स्लो, और वो धीरे धीरे चल रही थी. क्यों चल रही थी कि जो स्ट्रीट है वो वेट है, कहीं वो बर्फ वर्फ से स्लिपरी स्ट्रीट तो वो है ही, तो कहीं वो फिसल विसल ना जाए. ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट है हमारा ये. इसके बिहाफ पे देखेंगे क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what does the phrase ragged and grey refers to? ragged and grey इसका क्या मतलब है.
इस फेज में रैग्ड एंड ग्रे, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से देखेंगे। फर्स्ट है वुमेन्स इमोशनल स्टेट, द वुमेन्स इमोशनल स्टेट दैट डे। वुमेन का कोई भी इमोशनल स्टेट उस दिन नहीं, इमोशनल का तो कुछ नहीं है। रैग्ड मतलब फटे हुए, वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में थी, वो मतलब ओल्ड थी। एंड बी वाला है वुमेन्स ओल्ड एंड वर्न आउट अपीरियंस। जो वुमेन थी वो ओल्ड थी, ग्रे का मतलब यहाँ ओल्ड है। एंड वर्न आउट अपीरियंस, वर्न आउट मतलब एक अच्छी कंडीशन में नहीं था उनका लुकआउट, है ना, मतलब कपड़े वपड़े थोड़े से फटे हुए थे, तो थोड़ा इस टाइप से थे, गंदे थे। तो बी वाला तो करेक्ट है, बट सी और डी देख लेंगे। द वेदर कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर डे, वेदर की कंडीशन डिस्क्राइब हो रही है रैग्ड एंड ग्रे में, नहीं। डी है द कलर ऑफ स्ट्रीट एंड द सराउंडिंग, रैग्ड एंड ग्रे मतलब यहाँ पे स्ट्रीट का कलर और उसके आसपास का कलर डिस्क्राइब किया गया है, नहीं। रैग्ड मतलब फटे हुए हो ना, कपड़े जो फटे हुए हो ना, ग्रे मतलब वो ओल्ड थी, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। द वुमेन्स ओल्ड एंड वर्न आउट अपीरियंस, उनका अपीरियंस भी एक लुकआउट मतलब जो लुक वाइज था उनका अपीरियंस ठीक नहीं था, वो ओल्ड थी, तो बी वन इज करेक्ट। द वुमेन्स ओल्ड एंड वर्न आउट अपीरियंस, सो what does the phases ragged in gray refers to? जिसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, द वुमेन्स ओल्ड एंड worn out appearance। ठीक है, चलो सेकंड देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है अपने सुटेबल रीजन के साथ। फर्स्ट है मतलब सेंटेंस है हमारा, द वुमेन वॉज वेंट विद अ चिल ऑफ डे बिकॉज शी वॉज, मतलब जो वुमेन थी वो ठंड के दिन में थोड़ा सा झुक के चल रही थी, क्योंकि शी वॉज, क्यों क्यों चल रही थी? क्योंकि वो ओल्ड थी, वो वीक थी, और जो ठंड थी, है ना, ठंड से वो थोड़ा सा सिकुड़ के चल रही थी, है ना, ठंड भी काफ़ी तेज थी। सो बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड वीक एंड द कोल्ड मेड हर हंच ओवर, because she was old and weak and the cold made her hunch over। ठीक है, so the woman was went with the chill of the winter's day because she was old and weak and the cold made her hunch over। ठीक है, चलिए अगर ठीक है तो थर्ड वन देखेंगे। Identify the fact and the opinion from the following sentences। Identify the fact and the opinion from the following sentences। Facts देखेंगे, opinion देखेंगे इन sentences से। देखो, the street was wet with recent snow। फैक्ट क्या है यहाँ पे, मतलब क्या है, फैक्ट भी बताएंगे और फिर ओपिनियन भी बताएंगे। ठीक है, द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो, तो यहाँ पे फैक्ट है कि ओपिनियन है, ये पता लगाओ। फैक्ट है भैया कि जो स्ट्रीट थी वो वेट थी, हाल हो रखी स्नो से, सो ये है बच्चे हमारा फैक्ट है। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है, तो फर्स्ट वाले में है फैक्ट, डिस्क्राइब एन ऑब्जर्वेबल कंडीशन। ठीक है, सेकेंड, द वुमेन वॉज टू वीक टू क्रॉस द स्ट्रीट ऑन हर ओन, ये हमारा ओपिनियन है। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया गया कि भैया जो हमारी वुमेन है वो बहुत वीक है, वो स्ट्रीट को क्रॉस नहीं कर पा रही, ये हम ओपिनियन है कि वो बहुत वीक है, दैट्स वाई she can't she is unable to cross the street, है ना। So here we can write a opinion, है ना, क्योंकि assumes her weakness, हम यहाँ assume कर रहे हैं उनकी weakness को। ठीक है, तो फर्स्ट वन में आएगा फैक्ट, विच यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्राइब एन ऑब्जर्वेबल कंडीशन, एंड सेकेंड वन में आएगा यहाँ ओपिनियन, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो शायद वीक हैं, अज्यूम्स हर वीकनेस। ठीक है, चलो ठीक है, तो फोर्थ वन देखेंगे। Why do you think the woman's feet were described as aged and slow?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो वुमेन के फीट है उनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है एजेड और स्लो के साथ, या वुमेन्स के फीट के आगे एजेड और स्लो क्यों लिखा गया होगा? क्यों लग रहा है? बताइए आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो वो जो ओल्ड वुमेन है तो उनके फीट एजेड है, उनकी एज को बताया जा रहा है। और स्लो स्लो क्यों चल रहे हैं? शायद उनका फिजिकल वीकनेस, मतलब शायद वो वीक है, दैट्स वाई वो स्लो चल रही हैं, है ना। और ये दोनों चीज़ें क्या हाईलाइट कर रही हैं कि वो कितना हेल्पलेसनेस है ना। तो the description of the woman feats as aged and slow emphasize her old age and physical weakness, highlighting her helplessness. The description of the woman's feet as aged and slow emphasizes her old age and physical weakness, highlighting her helplessness. ठीक है. Why do you think the woman's feet were describing as aged and slow? So the description of the woman's feet as aged and slow emphasizes her old age and physical weakness, highlighting her helplessness. ठीक है बढ़िया से. चल अगर ठीक है तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के अंदर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मतलब एक और एक्सट्रैक्ट है हमारे पास. He guided the trembling feet along, prouded that his own were firm and strong. Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. That means बच्चे इस एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि वो जो लड़का था वो उन कपकपाते हुए पैरों को गाइड करते जा रहा था कि आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको ऐसे चलना चाहिए, उस रोड को क्रॉस करवाने में, उस स्ट्रीट को क्रॉस करवाने में. प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग. वो इस चीज़ पे प्राउड भी कर रहा था, मतलब वो जो काम कर रहा था उस पर वो प्राउड भी फील कर रहा था. नेक्स्ट है, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट. वो फिर वापस उनको हेल्प करके अपने फ्रेंड के पास वापस आया. हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट. लेकिन अब जो उसका दिल है ना वो बड़ा खुश है और बड़ा उसको एक सेटिस्फेक्शन है मन में जो उसने काम किया. ठीक है. अब इसके बिहाफ पे देखेंगे बच्चे कुछ क्वेश्चंस क्या हैं उनको देख लेंगे. फर्स्ट वन वी हैव what does the contrast between the trembling feet of the old woman and the firm and strong feet of the boy emphasize? ये जो कंट्रास्ट है दोनों चीज़ों में, ट्रैम्बलिंग फीट ऑफ द ओल्ड वुमेन और फर्म एंड स्ट्रॉन्ग फीट ऑफ द बॉय, मतलब कपकपाते हुए पैर उस बूढ़ी औरत के और दृढ़ निश्चय और एकदम मजबूत पैर उस लड़के के. क्या एम्फेसाइज कर रहा है? दोनों के बीच दोनों की एज का डिफरेंस बता रहा है ना, कि भाई वो ओल्ड लेडी है तो उनके जो पैर हैं वो एकदम ट्रैम्बलिंग फीट है, पैर उनके कपकपा रहे हैं उनकी एज की वजह से. और लड़के के फीट एकदम स्ट्रॉन्ग है. क्यों है? क्योंकि वो अपनी यंग एज पर है ना. तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा कि the difference in their age and physical strength showing the boy's ability to help her. दोनों की एज का डिफरेंस दिखा रहे हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई गई है लड़के की कि उसके अंदर इतना एबिलिटी है उनकी हेल्प करने के लिए. ठीक है. ही इज एबल टू हेल्प हर, है ना. So, what is the contrast between the trembling feet of the old woman and the firm and strong feet of the boys emphasize? यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा the difference in their age and physical strength showing the boy's ability to help her. Clear है? कोई डाउट? अगर नहीं है तो बच्चे देखेंगे अपना नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक गिवन below by selecting the correct option from the bracket. हमें अपना फिलअप कंप्लीट करना है और उसके आगे हमारे पास फिर एक ब्रैकेट भी अवेलेबल है. ठीक है. तो देखेंगे, देखो
फर्स्ट है मतलब द पोएम टेल्स अस दैट द बॉय वॉज प्राउड दैट हिज फीट वर स्ट्रॉन्ग। हमें ये पोएम बता रही है कि लड़का एक प्राउड फील कर रहा है ना, और उसके जो फीट हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दिस टेल्स अस द बॉय वॉज, ये पोएम हमें क्या बता रही है, बॉय क्या है, एरोगेंट अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, घमंडी है कि वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प, या फिर वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि वो किसी के हेल्प करने के काम आ रहा है, किसी को हेल्प कर पा रहा है। घमंडी तो वो कतई भी नहीं है ना, वो ग्रेटफुल है कि वो किसी को हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ग्रेटफुल ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प, है ना। तो बच्चे क्या फील कर रहा है, वो प्राउड फील कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेटफुल है कि वो किसी को हेल्प कर पा रहा है। आंसर क्या लिखेंगे, द पोएम टेल्स अस दैट द बॉय वॉज प्राउड दैट हिज फीट वर स्ट्रॉन्ग, है ना। और सेकंड वाले में क्या है, मतलब पहले वाले का तो बता रखा है, सेकंड वाले में है भैया कि जो ये बता रहा है कि जो बॉय है वो ग्रेटफुल है कि वो किसी को हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, चलो थर्ड वन पे आ जाएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज द बॉय मोस्ट लाइकली टू टेल हिज फ्रेंड ऑन गेटिंग बैक, मतलब वो जो लड़का है वो वापस आने के बाद अपने फ्रेंड को क्यों बता रहा है, मोस्ट लाइकली टू टेल हिज फ्रेंड, बताओ। तो फर्स्ट है, आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर, उसने एक तरीके से यही बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाया, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, आई एम वरीड अबाउट हर सेफ्टी, मैं उनकी सेफ्टी को लेके चिंतित हूँ, ये तो नहीं बोला था उसने अपने फ्रेंड के पास वापस आके। थर्ड वन है, आई एम सरप्राइज शी फॉरगॉट टू थैंक मी, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि उन्होंने मुझे थैंक यू नहीं कहा। नो। डी है, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट, मैं तुम सबके सपोर्ट के लिए थैंकफुल हूँ, काय बात का सपोर्ट किया था उन लोगों ने। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाया। उसने अपने फ्रेंड्स को क्या बताया वापस आने के बाद, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाया। ठीक है इतना। चलो नेक्स्ट पे आज मतलब इसको वापस देखेंगे। What is the boy most likely to tell his friend on getting back? So first A1 is correct. I'm so glad I could help her. ठीक है, चलो फोर्थ वन देखेंगे। रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट दिया गया है और इस गलत स्टेटमेंट को हमको रेक्टिफाई करके लिखना है, ठीक करके लिखना है। जैसे पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लिया जाए। स्टेटमेंट वी हैव, द यंग बॉयज एक्शन वॉज ड्राइवन बाय अ लॉजिकल डिसीजन, जो यंग लड़का था उसके एक्शन क्या एक लॉजिकल डिसीजन दिखा रहे थे, नहीं क्या दिखा रहे थे, दयालुता और एम्पैथी, है ना। तो यहाँ पे लॉजिकल डिसीजन तो नहीं आएगा, एक लॉजिकल उसने कुछ सोच समझ के कुछ उनको हेल्प किया क्या, नहीं, उसके अंदर काइंडनेस थी, उसने तब जाके उनको हेल्प किया, है ना। तो द यंग बॉयज एक्शन वॉज ड्राइवन बाय अ लॉजिकल डिसीजन, इसमें लॉजिकल डिसीजन को रिप्लेस करके हम यहाँ लिख सकते हैं, द यंग बॉयज एक्शन वॉज ड्राइवन बाय काइंडनेस एंड एम्पैथी, द यंग बॉयज एक्शन वॉज ड्राइवन बाय काइंडनेस एंड एम्पैथी। क्लियर, चलो क्लियर है तो बच्चे देखेंगे अपना नेक्स्ट वन वी हैव अ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें कुछ क्वेश्चन के करने हैं आंसर, फाइन करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट माइट बी द ओल्ड वुमेन्स फियर एज शी वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम एट द क्रॉसिंग, ओल्ड वुमेन का क्या डर हो सकता है कि वो लंबे समय से क्रॉसिंग पे इंतज़ार कर रही थी, वो आगे ही नहीं बढ़ रही थी, क्या रीज़न हो सकता है। देखो रीज़न हो सकता है ओल्ड वुमेन का क्योंकि वो वीक है तो वो कहीं गिरा ना जाए, है ना, या फिर उनको कोई कैरेज वगैरह, मतलब वो कहीं रोड क्रॉस करें तो कहीं कोई गाड़ी वाड़ी से टकरा वकरा ना जाए, है ना, उनको लगू ना जाए,
हॉर्स के फीट से उनको कहीं लग लगा ना जाए। ओवरऑल शी माइट हैव फियर्ड फॉलिंग, है ना, उनको डर था कि कहीं वो गिर ना जाए, है ना, और किसी से ना लगे लोगे तो भैया वो फिसलन भरी गली में ही ना गिर जाए, खुद से ही ना गिर जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है ना। सो शी माइट हैव फियर्ड फॉलिंग, उनको गिरने का डर था, और बीइंग हिट बाय कैरेज और हॉर्स, कोई गाड़ी घोड़ा ना मार जाए उनको, लगा लगू ना जाए, और बीइंग इग्नोर्ड इन द स्लिपरी स्ट्रीट, इसका भी उनको डर था, है ना। सो शी माइट हैव फियर्ड फॉलिंग by hit by a carriage or horse, or being ignored in the slippery street. So what might be the old woman's fear as she waited for a long time at the crossing? So she might have feared falling, being hit by a carriage or horse, or being ignored in the slippery street. Correct. चलिए देखेंगे तो फिर अपना सेकंड है हमारा हाउ डज द पोइट शो हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड वुमेन। यहाँ पे पोइट ने कैसे दिखाया है कि जो ओल्ड वुमेन है वो हेल्पलेसनेस है, वो बेचारी टाइप है। सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस फ्रॉम द पोयम। अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए कुछ एविडेंस भी बताओ जो पोयम में आपको दिखे हैं। जैसे हेल्पलेसनेस कैसे है, यहाँ पे दिखाया है वो ओल्ड है, रैग्ड है एंड ग्रे है ना, ओल्ड बूढ़ी है, कपड़े उनके थोड़े अच्छी कंडीशन में नहीं है, ग्रे है ना। और क्या दिखाया है, बैंड विद द चिल, ठंड की वजह से वो थोड़ी सी झुकी हुई टाइप है। एजेड एंड स्लो, ये भी वर्ड आया है ना, ये भी फेज आया है ना, बूढ़ी और थोड़ा धीमे चल रही है। और क्या, क्रॉसिंग पे वेटेड अलोन, वेटेड लॉन्ग, अलोन, अनकेयर्ड फॉर, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो अकेली है ना। एंड ये भी दिखाया गया शी वॉज इग्नोर्ड एंड अफ्रेड टू मूव, वो आगे मूव करने में भी डर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्पलेसनेस की तरफ दिखाती है ना, ये सारी चीज़ें। तो देखो, द पोएट शोज हर हेल्पलेसनेस बाय डिस्क्राइबिंग हर एज ओल्ड एंड रैग्ड इन ग्रे and bent with the chill and having aged and slow feet. The line she stood at the crossing and waited long या फिर alone uncared for shows she was ignored and afraid to move, है ना। The poet shows her helplessness by describing her as old and ragged and grey, bent with the chill and having aged and slow feet. The line she stood at the crossing and waited long, alone and cared for, shows she was ignored and afraid to move. ठीक है, अच्छे से चलिए थर्ड वन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है, why does the boy decide to help the old woman? What does this tell us about him? देखो, वो जो लड़का था वाई डज, उसने क्यों डिसाइड किया उस ओल्ड वुमेन को हेल्प करने के लिए? क्योंकि उसको उनके लिए दया आ रही थी और वो उनको अपनी मम्मी जैसे सोच रहा था, वो अपनी मम्मी के बारे मतलब मम्मी जैसा उनको लग रहा था, है ना। और ये चीज़ हमें क्या बताती है उस लड़के के बारे में, लड़का कितना काइंड है, कितना केयरिंग है और कितना रिस्पेक्टफुल है, उसके लिए हमारे माइंड में यही इमेज आती है नहीं। तो देखो, why does the boy decide to help the old woman? What does this tell us about him? तो बच्चे यहाँ पे हम क्या आंसर मेंशन कर सकते हैं? The boy helps because he feel empathy, thinking of his mother. This shows he is kind, caring and respectful. The boy helps because he feel empathy, thinking of his mother, and this shows he is kind, caring and respectful. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, how was the boy's approach towards the old woman different from that other boy in the group? उस लड़के ने कैसे अप्रोच किया ओल्ड वुमेन को, और मतलब डिफरेंटली अदर बॉयज इन द ग्रुप, जो सारे जो लड़के थे उन सब से हट के उस लड़के ने उनको कैसे अप्रोच किया, बताओ।
अदर मतलब और लड़के क्या कर रहे थे और उसने क्या किया उनसे हटके। देखो, सारे लड़के तो जल्दी जल्दी में उनके पास से निकल रहे थे उनको बिना हेल्प करे, लेकिन वो वहाँ पर रुका उनके पास, उनको हेल्प ऑफर करी और उनको सेफली गाइड किया, जो कि हमें क्या दिखाया उसकी काइंडनेस को, है ना। सो द अदर बॉय हरीड पास्ट विदाउट हेल्पिंग while the boy stopped, offered help and guided her safely, showing kindness, है ना। The other boys hurried past without helping while the boy stopped, offered help and guided her safely, showing kindness। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। देखो, जस्टिफाई करो पोएम के टाइटल को। टाइटल क्या है? समबडीज मदर। इसको ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है या नहीं, मतलब ठीक तो है, इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, द टाइटल समबडीज मदर इज एप्रोप्रिएट बिकॉज it emphasizes the woman's value as loved mother, inspiring the boy's kindness and her prayer for him। तो किसी की माँ है तभी तो देखो माँ क्या करती हैं, सब बच्चों के लिए प्रेयर करती हैं, है ना। तो उन्होंने उस लड़के के लिए भी प्रेयर करी। ठीक है, सेम एज यहाँ पे तो क्या आंसर लिखेंगे? The title Somebody's Mother is appropriate because it emphasizes the woman's value as a loved mother, inspiring the boy's kindness and her prayer for him. Okay, the title Somebody's Mother is appropriate because it emphasizes the woman's value as loved mother, inspiring the boy's kindness and her prayer for him। ठीक है, चलो 6-1 पे आ जाओ। 6-1 क्वेश्चन वी हैव। इसका 6-1 क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी। ये जो पोएम है ये सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? अबाउट द रोल ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत और सिंपैथी के बारे में सोसाइटी में, है ना। तो देखो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? द पोएम सजेस्ट दैट एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी like helping other make society kinder and shows that everyone deserve care and respect। ये लाइन क्या बताती है कि देखो दूसरों की हेल्प करने से हमारी सोसाइटी क्या होगी? दयालु, और ज़्यादा दयालु होगी। और वही क्या दिखेगा कि सब लोग डिजर्व करते हैं केयर और रेस्पेक्ट, है ना। The poem suggests that empathy and humanity, like helping others, make society kinder and shows that everyone deserves care and respect। ठीक है, चलो अगर ये ठीक है तो बच्चे देखेंगे अपने आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, जो कि है लेट अस लर्न। लेट अस लर्न के अंदर क्या है? द ग्रिड गिवन बिलो has the antonym of the word from the text। Locate these words in the grid horizontally, vertically, diagonally। One example has been done for you। You may refer to a dictionary। ठीक है, the grid given below has the antonym of the word from the text। देखो यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? देखो ये जो ग्रिड है ना, इसमें इन वर्ड्स के एंटोनियम छुपे हैं, अपोजिट वर्ड्स छुपे हैं, उनको फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, चलो जैसे कि फर्स्ट दिया है हमें स्ट्रेट। अच्छा, ये और देखो ये स्ट्रेट किसका एग्जांपल है, किसका एंटोनियम है? बेंट का। बेंट मतलब थोड़ा झुका हुआ होना, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा खड़ा हुआ होना, है ना। यहाँ पे हम और देख सकते हैं, और हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो एक काम दिखाई दे रहा है, CALM। काम किसका एग्जाम्पल हो सकता है? काम मतलब एकदम शांत, है ना। एनीशियस मतलब थोड़ा सा चिंतित, थोड़ा सा मतलब चिंतित, तो काम एकदम शांत। ठीक है, नेक्स्ट हमें बच्चे क्या दिखाई दे रहा है? सैड।
सैड मतलब थोड़ा सा दुखी, तो इसमें यहाँ पे कुछ हैप्पी का कुछ है। मैरी, मैरी मतलब होता है हैप्पी, तो हैप्पी का यहाँ पे दुखी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी, निर्दयी का दयालु होना चाहिए, यहाँ है काइंड, काइंड का यहाँ पे अपोजिट वर्ड एंटोनियम दिया है क्रूअल। नेक्स्ट है बोल्ड, बोल्ड मतलब बच्चे आप बोल्ड मतलब कह सकते हो, बोल्ड मतलब बेडर टाइप है ना, मीक मतलब थोड़ा सा डरा हुआ टाइप, तो इसका हो जाएगा बोल्ड। एंड नेक्स्ट है फर्म, फर्म का हो जाएगा एकदम से फ्रेगाइल। ठीक है, हमें यहाँ फ्रेगाइल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बच्चे यहाँ क्या क्या एंटोनियम्स मिले, काम, बोल्ड, फ्रेगाइल, सैड, क्रूअल एंड स्ट्रेट। ठीक है, ये सारे हमारे पास एंटोनियम है इस ब्लू वाले बॉक्स के। नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द अंडरलाइन फ्रेज इन कॉलम 2। देखो यहाँ पे हमें कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम 2 में बच्चे अंडरलाइन वर्ड है उसी से रिलेट करता हुआ, बस उसको आपको पहचानना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हैसेंट, हैसेंट मतलब वो जल्दी जल्दी काम करना, कोई भी काम हो उसको जल्दी जल्दी करना। तो अंडरलाइन वर्ड्स में से देख लें, इतना पूरा पढ़े उससे पहले देखो, फर्स्ट है मूव स्लाइटली, धीमे धीमे मूव करना नहीं, गिव देना नहीं, वर्कड क्विकली जल्दी जल्दी काम करना, हाँ जी, हैसेंट का मतलब होता है जल्दी जल्दी काम करना, है ना। नेक्स्ट है, इसका थर्ड वन करेक्ट है, द स्टूडेंट वर्कड क्विकली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिटेड इन ऑन टाइम, हैसेंट का थर्ड वन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वी हैव अ ही डिड, ही डिड का मतलब होता है ध्यान देना। अब ध्यान देना से रिलेटेड अंडरलाइंस वर्ड्स देखेंगे, मूव स्लाइटली नहीं, गिव देना नो, नेक्स्ट है वर्कड क्विकली हो गया, कीप्ड इन अ हीप नहीं, केम फॉरवर्ड नहीं, पेड अटेंशन ध्यान देना, है ना, ही डिड ध्यान देना, पेड अटेंशन, तो ये वाला करेक्ट है। सेकंड वाले का सिक्स्थ वन इज करेक्ट, पेड अटेंशन। पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, The stranded people were brought to safely because they paid attention to our advice. The stranded people were brought to safety because they paid attention to our device. ठीक है, नेक्स्ट वन है स्टिर, स्टिर का मतलब होता है थोड़ा सा धीमे धीमे चलना, थोड़ा सा धीमे धीमे खिसकना, है ना। इसका फर्स्ट देखेंगे मूव स्लाइटली, हाँ जी ये वाला ठीक है, मूव स्लाइटली वन करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट वन है भाई, द मदर हियर द बेबी मूव स्लाइटली इन द क्रेडल एट नाइट, द मदर हियर द बेबी मूव स्लाइटली इन द क्रेडल एट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन है बच्चे लैंड, लैंड मतलब होता है देना। अगर हम इसको देखें तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, देखो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड है गिव, गिव मतलब देना, है ना, तो लैंड का हो सकता है गिव, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पुअर, ये वन करेक्ट है कि लैंड का हो जाएगा सेकंड वाला, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पुअर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे पाइल्ड, पाइल्ड का क्या होता है, कीप्ड इन अ हीप। सो इसका देखो फर्स्ट हो गया, गिव हो गया, वर्कड क्विकली हो गया, कीप्ड इन अ हीप है हमारे पास ऑप्शन, पाइल्ड का हो गया, कीप्ड इन अ हीप, तो फोर्थ वन करेक्ट है। ऑल द बॉक्सेस वर कीप्ड इन अ हीप एट वन प्लेस, ऑल द बॉक्सेस वर कीप्ड इन अ हीप एट वन प्लेस। सिक्स्थ वन है ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब ऑफर करना, आगे आना, है ना, तो इसका तो फिर एक ही बचता है फोर्थ वन, दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प अस व्हेन वी वर इन नीड, वो आगे आया हेल्प करने के लिए जब हमें ज़रूरत थी। सो दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प अस व्हेन वी वर इन नीड। ठीक है, वंस इनको एक बार देख लें, देखो फर्स्ट है हैसेंट, जिसका हमारे पास थर्ड वन करेक्ट है बच्चे,
The student worked quickly to complete the project and submitted it on time. सेकंड है he did. He did में आ जाएगा सिक्स्थ वन जो कि है the stranded people were brought to safety because they paid attention to our device. थर्ड वन है हमारा स्टिर. स्टिर के अंदर आ जाएगा फर्स्ट वन जो कि है द मदर हियर्ड द बेबी मूव स्लाइटली इन द क्रैडल एट नाइट. फोर्थ वन है लैंड. लैंड का क्या हो जाएगा इट्स आवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पुअर. इट्स आवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पुअर. फिफ्थ वन है पाइल्ड जिसका फोर्थ वन करेक्ट है. All the boxes were kept in a heap at one place. All the boxes were kept in a heap at one place. Sixth है offered जिसका fourth one correct है. They came forward to help us when we were in need. They came forward to help us when we were in need. ठीक है समझ में आ गया. अगर समझ आ गया तो देखेंगे बच्चे अपना थर्ड वन. इसमें थर्ड वन शायद वो भी एक मैच है देख लेंगे. बच्चे थर्ड क्वेश्चन है इन द पोयम द पोइट यूज द आइटम lend a hand which means help somebody. Some more items using hand are given in column 1. Match these items with their meaning in column 2. You may refer to a dictionary. देखो यहाँ पे पोइट ने एक आइटम यूज किया है लैंड अ हैंड. ठीक है आपको इसी तरीके से यहाँ पे हैंड से रिलेटेड कॉलम 1 में क्या है और भी आइटम दिए हैं. आपको उनके करेक्ट मीनिंग के साथ बच्चे क्या करना है आपको मैच करना है सिंपली. ठीक है जैसे कि फर्स्ट वी हैव देखो कॉलम 1 के अंदर पहला है गेट आउट ऑफ हैंड. गेट आउट ऑफ हैंड इसका क्या हो सकता है डू समथिंग न्यू नहीं. अपलोड समबडी नहीं. वर्क टुगेदर नो. फोर्थ वन है बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल. हाँ जी बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो गेट आउट ऑफ हैंड दैट मीन्स बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल. नेक्स्ट है try your hand at something. Try your hand at something that means कुछ नया करना है ना. सो फर्स्ट वन इसका देखिए बच्चे do something new. Do something new. ठीक है try your hand at something that means do something new. थर्ड वन है give somebody a free hand. गिव समबडी अ फ्री हैंड खुले हाथ से देना किसी को. तो इसका बच्चे देखो सेकंड अपलाउड समबडी नो. वर्क टुगेदर नहीं. बी वेरी बिजी नहीं. सिक्स्थ वन है अलाउ समबडी टू डू समथिंग विथ फुल फ्रीडम. अलाउ समबडी टू डू समथिंग विथ फुल फ्रीडम. हाँ जी इसका गिव समबडी अ फ्री हैंड that means allow somebody to do something with full hand. ठीक है फोर्थ वन we have give somebody a big hand. give somebody a big hand that means इसका सेकंड है applaud somebody. give somebody a big hand that means applaud somebody इसका सेकंड वन करेक्ट है. फिफ्थ we have work hand in hand. work hand in hand एक साथ काम करना है ना. तो इसका थर्ड वन आप चेक करिए बच्चे वर्क टुगेदर. वर्क टुगेदर ठीक है वर्क इन हैंड वर्क टुगेदर. क्लियर है. चलो सिक्स्थ वन चेक करेंगे. सिक्स्थ वन वी हैव योर हैंड्स फुल. हैव योर हैंड्स फुल हाथ बिजी हो जाना. ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना. तो इसके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है बी वेरी बिजी. बी वेरी बिजी. ठीक है चलो एक बार वंस इनको रीड करेंगे. फर्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड. गेट आउट ऑफ हैंड का फोर्थ वन है बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सेकेंड वन वी हैव ट्राई योर हैंड एट समथिंग.
जिसका फर्स्ट वन करेक्ट है, डू समथिंग न्यू, ठीक है। थर्ड वन, गिव समथिंग अ फ्री हैंड, जिसका बच्चे करेक्ट ऑप्शन है सिक्स्थ वाला, अलाउ समथिंग टू डू समथिंग विथ फुल हैंड, ठीक है। फोर्थ है, गिव समबडी अ बिग हैंड, जिसका सेकंड है अप्लाउड समबडी, ठीक है। फिफ्थ है, वर्क हैंड इन हैंड, जिसका थर्ड है वर्क टुगेदर, ठीक। सिक्स्थ है, हैव योर हैंड्स फुल, जिसका फिफ्थ करेक्ट है बी वेरी बिजी, ओके। समझ आ गया नहीं बढ़िया से? चलो अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Complete the following analogy by filling in the blanks with the correct word from the poem. इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। देखो, विंटर के साथ क्या आएगा जब समर के साथ हीट है तो हीट, कोल्ड, है ना। अगर समर के साथ हीट है तो विंटर के साथ क्या पैर बन जाएगा? कोल्ड। ये एनालॉजी होती है बच्चे, है ना। चलो नेक्स्ट है, हर्ट के साथ क्या आएगा जब ओल्ड के साथ एज आ रहा है। देखो हर्ट, हर्ट के साथ क्या आएगा? ओल्ड। ये देखो ओल्ड एक एज है तो हर्ट एक नुकसान है, एक हार्म है, एक चोट, मतलब कुछ नुकसान पहुंचाना टाइप, है ना। तो हर्ट के साथ एनालॉजी बनेगी हार्म, हर्ट, हार्म, ओल्ड, एजेड, ठीक। थर्ड वन है विस्पर्ड शाउटेड, विस्पर्ड शाउटेड, तो हम्बल, हम्बल का क्या रहेगा? प्राउड, हम्बल, प्राउड, ठीक है। चलो लेग्स से हम वॉक करते हैं तो आइज के साथ हम क्या करते हैं? देखते हैं। आइज सी, इफ लेग का वॉक रहेगा तो आइज का रहेगा सी, ठीक है। फिफ्थ वन है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसको हम वेल्दी कहते हैं, बहुत सारा पैसा होना तो वेल्दी। डेंसली पैक्ड पीपल, बहुत सारे मतलब बिच बिच के लोग जन आ रहे हैं, बहुत हैवी अमाउंट में अगर पीपल हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्राउडेड, भीड़, है ना। इफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी कॉल्ड वेल्दी, देन डेंसली पैक्ड पीपल, इसको हम बोलेंगे क्राउडेड, ठीक है। चलो वंस इनको देखेंगे। हीट का समर है तो विंटर के साथ आएगा कोल्ड। ओल्ड एक एजेड है तो हर्ट के साथ आएगा हार्म। विस्पर्ड शाउटेड, देन हम्बल, प्राउड। लेग्स वॉक तो आइज सी, ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी कॉल्ड वेल्दी, देन डेंसली पैक्ड पीपल कॉल्ड क्राउडेड। क्लियर? अच्छे से हो गया नहीं? चलो अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो देखेंगे जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है बच्चे, फिर हमारे पास लेट अस लिसन, रीड द लाइन फ्रॉम द पोएम गिवन बिलो। चलो पहले इसको एक बार देख लेते हैं। लीस्ट द कैरेज व्हील और हॉर्स फीट शुड क्राउड हर डाउन इन स्लिपरी स्ट्रीट। देखो डर था कि कहीं गाड़ी घोड़े से उनको लग ना जाए, कोई गिरा ना दे, या फिर शुड क्राउड हर डाउन, या फिर उनको जो भीड़ भाड़ है उसकी वजह से वो गिर ना जाए स्लिपरी स्ट्रीट में, ठीक है। लीस्ट इज ए कंजक्शन, लीस्ट एक कंजक्शन है, दैट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग बैड, कुछ बुरा होने से बचना, है ना। और अनप्लीजेंट फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से मतलब अनप्लीजेंट होना। To better understand its use in a sentence, we can replace least with just in case. अगर ऐसा हो तो just in case. For example, in a sentence, she showed all the document least we doubt her. The word least can be replaced with just in case. It means that shows the document to prevent any doubt. ठीक है, just it was for reading. चलो रीड कर लिया। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास लेट अस लिसन। लेट अस लिसन में फर्स्ट है यू विल लिसन टू वुमेन रीड स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज़, ठीक है। एज यू लिसन अरेंज द पिक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस।
ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 99। बच्चे एक्टिविटी वर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज़। एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वन ऑफ द 3 एक्सट्रैक्ट वर्ड। ठीक है, चलो फर्स्ट है हमारे पास। अच्छा, करना क्या है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज़ का आप स्पेशल ब्रॉडकास्ट को एक बार और सुनो। एज यू लिसन, जैसे आपने सुना वैसे इनको कंप्लीट करना है। चलो इसको हम आपको वैसे करा देंगे। देखो फर्स्ट है द वुमेन वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम स्टेइंग अफ्लोट ड्यू टू द मतलब जो वुमेन है वो बड़े डिफिकल्ट टाइम में स्टेइंग अफ्लोट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करंट इसमें आएगा। सेकेंड वी हैव रोहन लीप्ड इनटू द रिवर टू सेव द वुमेन विदाउट एनी। रोहन जो था वो रिवर के अंदर कूद गया, जस्ट वो लीप कर गया उस वुमेन को बचाने के लिए बिना किसी हेजिटेशन के। सो विदाउट एनी hesitation. Third we have Rohan's act of bravery was witnessed by रोहन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जो रोहन का बहादुरी का जो एक्ट था वो विटनेस था किसका, सर्वरल ऑन लुकर्स का, कुछ जो उधर उधर देख रहे थे उनका, सर्वरल ऑन लुकर्स का। नेक्स्ट है Rohan was honored at the Vigyan Bhavan for his incredible course and Rohan was honored at the Vigyan Bhavan for his incredible course and selflessness. रोहन को ऑनर्ड किया गया विज्ञान भवन पे उसके अद्भुत करेज और सेल्फलेसनेस के बारे में, मतलब खुद के बारे में ना सोचते हुए उसने जो करेज दिखाया उसके लिए, तो यहाँ आएगा सेल्फलेसनेस। फिफ्थ वन वी हैव Rohan proved that what it comes to saving life, age is रोहन ने प्रूव कर दिया when it come to saving life, मतलब जब जान बचाने की बारी आती है तो एज हमारी उम्र बस एक नंबर होता है, एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, रोहन प्रूव्ड दैट when it comes to saving life, एज इज जस्ट अ नंबर। क्लियर है? चलो अगर क्लियर है बच्चे तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देन द वुमेन वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम स्टेइंग अफ्लोट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करंट्स। सेकेंड है रोहन लीप्ड इनटू द रिवर टू सेव द वुमेन विदाउट एनी हेजिटेशन। थर्ड है रोहन एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी वॉज विटनेस्ड बाय सर्वरल ऑन लुकर्स। फोर्थ है रोहन वॉज ऑनर्ड एट द विज्ञान भवन फॉर इज इनक्रेडिबल करेज एंड सेल्फलेसनेस। फिफ्थ है रोहन प्रूव्ड दैट व्हेन इट कम टू सेविंग लाइफ, एज इज जस्ट अ नंबर। क्लियर है बच्चे? चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे हम लेटस लिसन पर, नहीं सॉरी लेटस स्पीक पर। अब कुछ बोलने की बारी है, देखेंगे इसमें क्या है। फर्स्ट है रीड अलाउड द लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम द पोएम दैट एंड इन ईडी। इनको तेजी से ऐसे पढ़ो, इन सारे वर्ड्स को, ये पोएम से लिए गए, ये खत्म होते हैं ईडी पे। As you read, focus on final sound of each word and place them in appropriate column. One example has been done for you. देखो जो ईडी पे खत्म हो रहे हैं, देखो ये आपको एक एग्जाम्पल करके दिया गया है। ठीक है, आईडी पे खत्म होने वाला रैग्ड है ना, डी पे खत्म होने वाला ही डिड, टी पे खत्म होने वाला पॉज्ड। ठीक है, जहाँ टी साउंड आ रहा है, आई जी साउंड आ रहा है और डी साउंड आ रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको करके दिया गया है। नोट एग्जेक्टिव दैट कम बिफोर अ नाउन एंड एंड विद ईडी हैव आईडी एंड द फाइनल साउंड। ठीक है, जैसे देखो टी पे खत्म होने वाला हेल्ड, पास्ट, प्लेस्ड हो सकता है। डी पे खत्म होने वाले और भी हो सकते हैं लाइक गाइडेड, हेल्ड,
बोर्ड, आईटी पे खत्म होने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? वेटेड, कंटेन्ड, है ना? टी साउंड जिसका आएगा हेल्प्ड, पास्ट, प्लेस्ड, ठीक है। डी पे खत्म होने के लिए डी साउंड क्या रहेगा? गाइडेड, हेल्ड, बोर्ड। आई डी साउंड क्या रहेगा? वेटेड, कंटेन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वर्क इन पेयर। वर्क इन पेयर में देखेंगे नरेट एन इंसिडेंट वेर यू हेल्प समवन इन पास्ट। आपको एक ऐसा इंसिडेंट को नरेट करना है जब आपने पास्ट पे पहले किसी के हेल्प करे हो। टेक टर्न टू स्पीक एंड यूज द क्यू कार्ड गिवन ब्लो। देखो आपको मतलब ये आपको कुछ क्यू कार्ड दिए गए हैं जो कि आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है। चलो ये आपको खुद से कर लेंगे बच्चे, क्योंकि ये आपको खुद से अपना बताना है, अपना कोई इंसिडेंट को नरेट करना है जब आपने किसी का हेल्प करी हो, ठीक है। चलो आ जाओ लेट अस राइट पर। लेट अस राइट के अंदर क्या है? लेट अस राइट के अंदर क्या है? राइट अ डायरी एंट्री ऑफ अ डे यू हेल्प समवन इन नीड। आपको एक डायरी लिखनी है एक दिन के बारे में जब आपने किसी को हेल्प करे हो, उसको जब ज़रूरत हो तो। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट वाइल राइटिंग इट। याद रखिएगा आपको ये सारे पॉइंट उसमें मेंशन करने हैं जब आपने क्या किया हो, जब आप राइटिंग डायरी लिख रहे हो तो। स्टार्ट विद द सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे। पहले आपको डे को डिस्क्राइब करना है। आफ्टर देन एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच द अदर पर्सन नीडेड हेल्प। फिर आपको वो सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है जब सामने वाले को आपकी ज़रूरत लगी हो। नेक्स्ट एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ द डे वेयर सिचुएशन अरोज। मतलब आपको वो टाइम और प्लेस भी ऐड करना है जब वो सिचुएशन हुई होगी। नेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ यू हेल्प द अदर पर्सन। फिर आपको डिस्क्राइब करके लिखना है कि आपने अदर पर्सन को कैसे हेल्प किया। देन डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द पर्सन यू हेल्प्ड। फिर आपको रिएक्शन लिखना है जब आपने उस पर्सन की हेल्प करी तो उसका क्या रिएक्शन रहा। देन मेंशन हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर हेल्पिंग द पर्सन। फिर आपको मतलब अपना फीलिंग दिखाना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है कि आपको क्या फीलिंग रही आपकी जब आप उसकी हेल्प कर रहे थे, आपने उसकी जब हेल्प कर दी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कंक्लूड बाय मेंशनिंग वाई यू वुड डू समथिंग लाइक दिस अगेन। फिर आपको बताना है आप ऐसा फिर दोबारा करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये डेट डियर डायरी टुडे आई फील वॉज अ स्पेशल डे। ऐसा आप ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और जब डायरी लिख रहे हो फिर आप टाइम भी इधर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे डायरी कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमें बताया गया हम ऐसे इस डायरी को स्टार्ट करेंगे। 26 अप्रैल 2025 इट्स सैटरडे, ठीक है। टाइम है 8 PM। डियर डायरी टुडे वॉज अ स्पेशल डे बिकॉज आई हेल्प एन एल्डरली नेबर। बच्चे आप यहाँ अपना ओन कुछ लिख सकते हैं, आपने जिसकी भी जैसे भी हेल्प करी हो, ठीक है। Today was a special day because I helped an elderly neighbor, Mrs. Sharma. In the afternoon, at around 2 p.m., I saw her struggling to carry heavy grocery bag near our apartment gate. She looked tired and was moving slowly. I offered to carry her bag to her house on the second floor. She smiled and thanked me warmly, saying she felt relieved. I felt happy and proud while helping her, and afterward I felt joyful knowing I made her day easier. I would help again because it feels good to be kind and make someone smile. Yours? फिर नीचे आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वंस इसको एक बार रीड किया जाए देन देखो 26 April 2025 it's Saturday 8 p.m. Dear diary, today was a special day because I helped an elderly neighbor Mrs. Sharma in the afternoon at around 2 p.m. I saw her struggling to carry heavy grocery bag near our apartment gate.
She looked tired and was moving slowly. I offered to carry her bag to her house on the second floor. She smiled and thanked me warmly, saying she felt relieved. I feel happy and proud while helping her, and afterward I felt joyful knowing I made her day easier. I would help again because it feels good to be kind and make someone smile. Yours? After then you can mention your name here. ओके, चलिए अगर ये हो गया तो देखेंगे बच्चे आगे. लेट अस एक्सप्लोर में फर्स्ट वन है, डिड यू नो दैट इवन अर्थ हैज़ बीन रेफर्ड टू एज मदर इन अ एंशिएंट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया. क्या आपको पता है इवन अर्थ को भी हम एज अ माँ मानते हैं. इन सेक्शन 12 of पृथ्वी सुक्ता, Hyman to the earth of Atharva Veda, earth is referred to as mother and us as her children by stating Mata Bhumih Putrodhyam Pratvivyah. ठीक है, it can be translated as earth is my mother and I am her children. जस्ट पढ़ने लायक था ये. ठीक है, मतलब ओवरऑल धरती मेरी माता है और हम उसके बच्चे हैं. ठीक है, चलो सेकंड है वर्क इन पैर ऑफ फोर के पैर में आपको ये वर्क करना है. फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री दैट रेफर टू द कंट्री एज मदरलैंड एंड फ्यू अदर एज फादरलैंड. शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लासमेट एंड टीचर. कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नेम बताओ जिसको मातृभूमि कहा जाता है और कुछ ऐसी कंट्री के नेम जिसको पितृभूमि कहा जाता है. कुछ नेम याद है, देखो मातृभूमि टाइप इंडिया, रशिया, बांग्लादेश, ये हो गए हमारे मातृभूमि. फादरलैंड भी कहा जाता है जैसे जर्मनी, नॉर्वे एंड आइसलैंड, इनको हम फादरलैंड बोलते हैं. तो मदरलैंड इंडिया, रसिया एंड बांग्लादेश. फादरलैंड इसमें आएगा जर्मनी, नॉर्वे एंड आइसलैंड. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास. रीड द पोएम एंड एंजॉय. जस्ट ये पोएम रीड करने के लिए. अ नेशन स्ट्रेंथ. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ओनर्स शेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillar deep and lift them to the sky. इस पोएम को लिखा है जी राल्फ वाल्डो एमर्सन ने. ठीक है, इन्होंने लिखा है. चलो, ये पोएम मैन और वुमेन दोनों को रेफर करती है. फोर्थ वन में क्या है बच्चे. फोर्थ वन में है मेक अ ग्रैटिट्यूड कार्ड. एक ग्रैटिट्यूड मतलब एक थैंकफुल कार्ड बनाना है फॉर योर मदर, ग्रैंड मदर टू थैंक हर टू एटलीस्ट 5 थिंग दैट शी डज फॉर यू. आप एक थैंक यू कार्ड बनाना है अपनी मम्मी, दादी माँ, किसी के लिए भी उनको थैंक यू बोलते हुए कुछ 5 चीज़ों के लिए जो वो आपके लिए करती हों. ऑल्सो राइट 2 थिंग दैट यू वुड रेगुलरली टू हेल्प देम. और 2 ऐसी चीज़ जो आपके लिए आप उनके लिए करना चाहेंगे. यूज़ रिसाइकल्ड मटेरियल टू मेक एंड डेकोरेट द कार्ड. आप यहाँ रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड को डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, आफ्टर देन हो गया बच्चे हमारे इस चैप्टर का दी एंड. आई होप अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इस चैप्टर में अगर कोई डाउट होता है तो बच्चे हमारे पास हमारा कमेंट बॉक्स है. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. मैम हमें यहाँ डाउट है, हमें ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, जो भी क्वेरीज हो वो डाल दीजिएगा. और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे. ओके, थैंक यू सो मच.